Hello students, today we will study the first chapter of your history, and the name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. In this book, in class 7th, you are going to study about the 1,000 years from 700 to 750. Okay, this period is called as medieval period. Okay, and in this first lesson, on the very first page of your lesson and on the second page you will be seeing two maps. आपको दो maps दिखेंगे, एक page 1 पर और एक page 2 पर. These two maps are of the same area but both the maps are very different. ये दोनों जो maps हैं एक ही जगह के हैं पर फिर भी आप देखेंगे कि ये दोनों maps बहुत ही अलग हैं. The first map was made in 1154 CE by an Arab geographer Al-Idrisi. And the second map is made by a French cartographer in 1720. So there is a difference of 600 years in the two maps. ये जो दो maps हैं इन दोनों maps में 600 साल का अंतर है. पहले map के बनाए जाने के nearly 600 साल के बाद जो है दूसरा map बनाया गया. And when you see the first map that is made by Al-Idrisi, you see that South India is where North India is supposed to be. Sri Lanka is an island that is at the top, है ना. बड़ा ही ये जो मैप है जैसा अभी हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. जहाँ पर साउथ इंडिया इस मैप में दिखाया गया है वहां पर नॉर्थ इंडिया है. असल में श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड के रूप में ऊपर टॉप में दिखाया गया है ना. The second map that is made in 1720 that is very similar, more familiar to us, है ना. ये जो दूसरा मैप है ये आज का जो हमारा इंडियन मैप है उससे काफी सिमिलर है. एंड दिस वाज द मैप दैट वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स फॉर देयर वॉयज. यही मैप है जिसको यूरोपियन सेलर्स ने और मर्चेंट्स ने इस्तेमाल किया हमारे देश में व्यापार के लिए आने के लिए. So these maps were different because the science of cartography differed in the two periods. ये दोनों maps क्यों अलग थे? इसलिए अलग थे क्योंकि cartography means a science of making maps, and cartographer is a person who makes maps. जो व्यक्ति मैप बनाता है उसे हम cartographer कहते हैं. और मैप्स बनाने की जो साइंस है, जो उसकी कला है, विज्ञान है, उसे कार्टोग्राफी कहते हैं. तो ये दोनों समय जब ये मैप्स बनाए गए, एक जो 1154 में बनाया गया और एक जो 1720 में बनाया गया, दोनों समयों में ये जो कार्टोग्राफी है वो काफी चेंज हो चुकी थी. इसीलिए हम इन दोनों मैप्स में बहुत बड़े अंतर को देखते हैं. Then when the historians they study the past, what do they read? They read many documents, maps and text from the past. And they have to consider the different historical backgrounds or the context in which the information was introduced. Historians जो हैं उनको इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को, टेक्स्ट को, पास्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ना पड़ता है ना. और उनको पढ़ने के लिए और उनकी बातों को समझने के लिए जरूरी है कि वो उस समय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखें जब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे. Now the problem is that these historical records they exist in variety of languages. ये जो historical records हैं, documents हैं, manuscripts हैं, ये बहुत सी languages में लिखे गए हैं. And these languages changed over years. और ये जो भाषाएं हैं ये समय के संग बहुत बदल गई हैं. For example, the medieval Persian is very different from modern Persian. Medieval times में जो Persian इस्तेमाल की जाती थी, Persian language, वो आज के समय की Persian language से बहुत अलग है. Now this language not only changes in terms of words, but there is a lot of difference that comes up with time in regards to grammar, vocabulary and also meaning of words, है ना. ये जो language है, ये भाषा है, इसमें change जो है, जो अंतर है वो किन किन चीजों में देखने को मिलता है. ग्रामर भी यानी कि व्याकरण भी बदल गया है, शब्द बदल गए हैं, और न केवल शब्द बदल गए हैं परंतु जो शब्द पहले इस्तेमाल किए जाते थे और वही शब्द अगर आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनका अर्थ जो है वो बदल गया है.
And for an example, in the book you have been given two examples. Example के रूप में आपको दो शब्द दिए गए, हिंदुस्तान and foreigner. Okay, so Hindustan was the term that was used in 13th century by Minhaj-e-Siraz in political sense. 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे जो पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, पर्शियन में लिखते थे, और उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल किया, और उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक सेंस में इस्तेमाल किया। और वो क्या किस लिए यूज कर रहे थे हिंदुस्तान टर्म को? ऑल द लैंड दैट वाज अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली का जो सुल्तान थे उनके अधीन जितनी जमीन थी, जितना जमीन का हिस्सा था, उसको बताने के लिए वो हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल कर रहे थे। सो ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना एंड द एंटायर लैंड दैट वाज अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के राज्य में जितनी जमीन आती थी, जितना एरिया आता था, वो पूरा उस पूरे एरिया के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल किया। पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच में पड़ने वाला जितना भी भूभाग है वो पूरा हिंदुस्तान के रूप में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उसको इस्तेमाल किया। Then in 16th century, बाबर also used the same term हिंदुस्तान। बाबर ने भी 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल किया, पर जब बाबर यूज करते हैं तो ही यूज्ड इट इन द जियोग्राफिकल सेंस। उन्होंने इसको जियोग्राफिकल सेंस में यूज किया, जहां पर जो पर्शियन इतिहासकार है वो इसे राजनीतिक सेंस में यूज कर रहे थे। बाबर इज यूजिंग इट फॉर geographical sense. He wants to tell about the geography, the fauna and the culture of the inhabitants. वो इस महाद्वीप की जो जियोग्राफी है, जो यहाँ का फाउना यानी कि यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, और यहाँ के लोगों का कल्चर, इनहेबिटेंट्स यानी यहाँ पे बसने वाले लोग, और उन लोगों की जो संस्कृति थी उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल किया। ओके, देन सेकेंड टर्म इज फॉरेनर। दूसरा इसी प्रकार का शब्द है फॉरेनर। टुडे वी यूज द वर्ड फॉरेनर फॉर एनीवन हु इज नॉट एन इंडियन। आज हम फॉरेनर शब्द को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तानी या इंडियन नहीं है। बट इन मेडिवियल पीरियड एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और दैट कल्चर वाज टर्म्ड एज अ फॉरेनर। मेडिवियल पीरियड में कोई भी अजनबी, कोई भी स्ट्रेंजर जो कि उस सोसाइटी का, उस समाज का और उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उसे फॉरेनर कहा जाता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सिटी ड्वेलर वॉज रिगार्डेड एज अ फॉरेनर बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर। फॉरेस्ट ड्वेलर यानी जो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए शहरों में रहने वाले लोग जो थे वो फॉरेनर होते थे। ठीक है, सो द वर्ड फॉरेनर वॉज यूज्ड डिफरेंटली in the medieval times and it is used very differently today. And their sources. Historians यानी कि जो लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, people who study the past. Okay, so to study the past, historians use different types of sources. And what are those sources? Coins, inscriptions, architecture and textual records. कॉइन्स आप सबको पता है क्या होते हैं? सिक्के। इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो हार्ड सरफेसेस पे खोद कर लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जैसे कि जो पत्थरों पर या लोहे के पिलर्स बना के उसके ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आर्किटेक्चर, दैट आल्सो यू नो, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी कि जो हाथों से लिखे गए रिकॉर्ड्स। इन मेडिवियल पीरियड use of paper also increased because paper became cheap and widely available. पेपर जो है वो बड़ा सस्ता और आसानी से अवेलेबल था, इसीलिए पेपर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। और पेपर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? टू राइट होली टेक्स्ट यानी कि धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स यानी कि जो राजा होते थे उनके इतिहास को लिखने के लिए। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स यानी जो संत होते थे उनके पत्र और उनकी जो शिक्षाएं होती थी उन्हें लिखने के लिए। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, तो न्यायिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या अर्जी लिख कर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पेपर को। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, तो बही खातों के लिए, कर यानी टैक्स के ब्यौरे के लिए या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पेपर का इस्तेमाल किया जाता था।
And manuscripts also you have studied. Manuscripts are the records that are written by hands, जो हाथों से लिखी जाती है, वो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, वो manuscripts कहलाते हैं. सो जो वेल्दी पीपल थे, धनी लोग थे, जो राजा थे, जो मठ मोनेस्ट्रीज और मंदिर टेम्पल, इन यहाँ पर जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उनको कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था. एंड वेयर दे वर कलेक्टेड, कहाँ उन्हें रखा जाता था कलेक्ट करके? इन लाइब्रेरीज और आर्किव्स. आर्किव्स क्या होते हैं? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. आर्किव्स वो जगह है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है. नाउ बिकॉज इन दिस period the printing press was not there, printing press was not invented till then, इसका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट होते थे वो हाथ से लिखे जाते थे. एंड व्हाट डिड द स्क्राइब्स डू? दे copied the manuscripts when the ओरिजिनल वन was becoming old. जब पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जब वो पुरानी हो जाती थी या जब वो ऐसी हो जाती थी कि अब लग रहा है कि ये खराब हो जाएगी, ज्यादा समय तक और स्टोर नहीं रह पाएगी, तो उसे क्या किया जाता था? फिर से हाथ से लिख लिया जाता था. सो इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस. जो लिखने वाले जो स्क्राइब्स होते थे, वो क्या करते थे? जब कॉपी करते थे तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते थे. And while copying these manuscripts over centuries, the difference became very big. ये जो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी उसमें और जो उसके बाद उसकी कॉपीज कई सेंचुरीज तक चली, उसमें क्या हुआ कि हर एक ने थोड़ा थोड़ा बदलाव किया, इसीलिए इनमें बहुत चेंज आ गया, बहुत अंतर आ गया जो ओरिजिनल लिखा गया था उसमें और जो उसकी बाद में जो वर्जन्स या जो कॉपीज बनी उनमें. इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं, दे हैव टू स्टडी मेनी वर्जन्स ऑफ द manuscripts to guess what the author must be originally writing. ना जो historians हैं, इतिहासकार हैं, उन्हें बहुत सारे manuscripts के versions को पढ़ना पड़ता है ताकि वो ये जान पाए कि वास्तविकता में जो ओरिजिनली क्या ऑथर कहना मांग रहा था, जो राइटर था वो क्या कहना चाहता था या वो क्या लिखना चाहता था. इसे समझने के लिए उन्हें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स को पढ़ना पड़ता